और भाई करण तो चिंता में ऐसा लग रहा है आज। मुझे इनकम टैक्स से एक नोटिस मिला है। ये इन्होंने 143(2) के अंदर नोटिस दिया है। ये तो बहुत ही सीरियस मैटर लग रहा है और अपन तो अपना रिटर्न टाइम पे करते हैं, फिर ये नोटिस कैसा आया? इनकम टैक्स वाले मुझसे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं। उन्हें लग रहा है जो मैंने रिटर्न फाइल करी है उसमें डिस्क्रिपेंसी है। एक बार अपन को सारे डॉक्यूमेंट्स देखने पड़ेंगे और मुझे लगता है कोई ना कोई तो इसका जवाब होगा। एक बार अपन को अपने टैक्स कंसल्टेंट से एडवाइस लेनी पड़ेगी। लीगल फैक्ट्री कहीं यहाँ पे है। दिखाना एक बार। अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है कि ये मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। हमें इनके पास आना चाहिए। ठीक है, तो अपन वहीं चलते हैं। भाई भी लीगल फैक्ट्री के लिए कह रहा था, पंडित जी भी लीगल फैक्ट्री के लिए कह रहा है और इनके यूट्यूब पे वीडियोस भी देखे हैं। लगता है एक बार लीगल फैक्ट्री जाना ही पड़ेगा। Welcome to Legal Factory. How can I assist you today? मुझे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस मिला है। इसमें कहा गया है कि हमें सेक्शन 143(2) के तहत डिटेल स्क्रूटनी के लिए चुना गया है। आप क्या बता सकते हैं कि इसका क्या मतलब है? ये लीजिए सर। Certainly. This notice under 143(2) is part of the assessment procedure under the Income Tax Act. It is issued when the AO wants to ensure that the taxpayer has not understated their income, computed excessive loss or underpaid tax. Notice यह इंश्योर करने के लिए जारी किया जाता है कि आपने किसी तरह की से कम टैक्स का भुगतान नहीं किया है। यह एक रूटीन प्रोसेस है। You will need to provide supporting documents for deductions, exemptions and claims you have made. It is important to respond to the notice within the time frame, and since you have received a specific notice because of your capital gain transaction on sale of shops as shown by you in the income tax return. Also, it is important for you to understand that this is notice issued under the faceless assessment scheme of the income tax department. What does that mean? Faceless assessment under section 144B of the IT Act has been introduced under the National E-Assessment Scheme. This scheme is launched in 2020 and is much needed reform and a revolution issued by the government for common man for reducing fostered corruption and aided tax evasion. This new initiative, Transparent Taxation Honoring the Honest platform, has the admirable goal of implementing the faceless system, a cutting-edge system to digitize the process of scrutinizing a file, where no one would be subject to visit arbitrary demands made by officer of the IT department or under the table deal. The plan is also seen as a relief because it gave taxpayers the convenience of filing out report representations replies electronically, saving time, money and effort. With this, you will also be receiving another notice under section 142(1) that is a detailed questionnaire for communication, and you need to provide specific point-wise response within the time limit. Important point to note that this is a faceless assessment. Dates and timelines provided are very specific. If we do not reply on the date within the specified time, the AO might close the proceedings and we might not be able even to furnish the reply. Yes, it's a bit harsh, but the government as on date has no other mechanism. The only mechanism is to file the reply within the specified date and within the time. Now, the first thing we should do is that we should file a return of income in response to this notice issued. Once we file the return in response to the notice issued under 143(2), then the AO will issue us a questionnaire under 142(1), in which he may ask us to furnish books of accounts, other documents, as well as the claims made by us in the return of income. Remember, filing the original return of income and filing a return of income in response to a specific notice are two different things. The first thing we need to do is to file the return in response to the specific notice. Only then the proceedings will start initiated. If we don't file the return in response to the specific notice, the AO will have a reason to believe that we don't wish to furnish any information, and then he is free to make an ex parte assessment order under section 144. Yes, this is it. हाँ सर, दरअसल मेरे पास एक ज़मीन थी जिसे मैंने पहले अपने दोस्त निशान से पार्टनरशिप में ख़रीदा था। फिर उस पर मैंने कमर्शियल शॉप्स का एक कॉम्प्लेक्स बनाने और फिर उसे बेचने के बारे में सोचा। करण, आपने अपनी जो ओरिजिनल रिटर्न भरी थी फाइनेंशियल ईयर 21-22 की, जिसमें आपने बिल्डिंग के कैपिटल गेन की ट्रांजैक्शन दिखाई थी, वो ट्रांजैक्शन आपके हिसाब से सही थी। मैंने अभी आपके नोटिस आने के बाद उस ट्रांजैक्शन को वापस वेरीफाई किया और मुझे लगता है कि आपने जो डिटेल्स ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं आपके पास और जो एक्सपेंसेस आपने क्लेम किए लेजिटमेट हैं, कोई एक्सेसिव नहीं है और रीजनेबल है लुकिंग टू द ट्रांजैक्शन। एंड आई थिंक वी शुड अगेन फाइल द रिटर्न. We should again file the same calculation and the same thing in response to the specific notice that have been received by us. Once we file the return in response to the said notice, then the jurisdictional AO will transfer our file to the National Faceless E-Assessment Center. कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए? करण, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि अपन ने रिटर्न भरनी थी, अपन रिटर्न भर चुके हैं इन रिस्पॉन्स टू द स्पेसिफिक नोटिस रिसीव्ड. नाउ द AO हैज इशूड अस अ नोटिस अंडर 142(1) इन व्हिच ही इज आस्किंग फॉर द फॉलोइंग डिटेल: अपने इस साल का बैंक स्टेटमेंट, आपके रिटर्न का कंप्यूटेशन, आपने जो प्रॉपर्टी सेल परचेज करी है उनकी डिटेल, अलॉन्ग विद आपके जो एक्सपेंडिचर्स की हैं आपने प्रॉपर्टी की इंप्रूवमेंट दिखाते हुए बिल्डिंग कॉस्ट में, उनके बिल्स और वाउचर्स. तो ये डिटेल्स आप एक बार लेके आइए, अपन इनको गो थ्रू करके सबमिट करते हैं. आई सी.
Thank you for clarifying. Let's prepare the documents then. Here I have the sale deed of the 3 shops sold by me and the purchase deed of the land and the GSTR returns. I have a soft copy in this pen drive and we can also attach the same and the bank statement. But these contain only half of the total expenditure as the rest was incurred by my friend Nishant. करण, मैंने आपके सारे पेपर्स देखे, मैंने रिप्लाई भी बना लिया है। मुझे लगता है इसमें कुछ चीजें हमें और देनी चाहिए, जैसे कि टोटल बिल्डिंग का ऑथराइज या परमिसिबल कंस्ट्रक्शन लिमिट या जो बिल्डिंग का प्लान है जो कि अप्रूव हुआ है लोकल अथॉरिटी से, हमें वो भी प्रोवाइड करना चाहिए एओ को, बिकॉज उससे एओ ये डिटरमाइन कर पाएगा कि टोटल परमिसिबल कंस्ट्रक्शन एरिया या टोटल परमिसिबल बिल्डिंग कितनी थी। बेस्ड ऑन दैट वी विल बी एबल टू मेक द एओ अंडरस्टैंड दैट द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन एज इनकर्ड बाय अस व्हिच हैज टू बी डिवाइडेड बाय द टोटल कंस्ट्रक्टेड एरिया इज रीजनेबल। मतलब कि हमने अगर 1 लाख रुपए बिल्डिंग में खर्च करे हैं और हमने 1000 स्क्वायर फीट बनाया है, तो इसका मतलब जो हमारी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन पर स्क्वायर फुट है वो रीजनेबल है और अभी के सालों को देखते हुए ये एक रीजनेबल एक्सपेंडिचर है। And what are the implications if we are not able to respond in time? करण, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर नोटिस का रिप्लाई हमें उस स्पेसिफाइड डेट पे और विद इन स्पेसिफाइड टाइम उस डेट पे देना है। अगर हम नहीं दे पाएंगे तो एओ हमारे ऊपर 10,000 रुपए तक की पेनल्टी पर इंस्टेंस लगा सकता है। वो यह भी कर सकता है कि वो प्रोसीडिंग्स को क्लोज कर दे और बेस्ट जजमेंट असेसमेंट अंडर सेक्शन 144 पास कर दे। A higher taxable income can be considered resulting in a higher tax and penalty payable by you. If you choose to dispute the higher tax demand, a minimum 20% of the due must be paid before we file an appeal with the tax authorities to obtain stay of demand. And करण, वो stay of demand भी हमें 30 days के अंदर लेना पड़ेगा। अगर कोई हायर डिमांड बन जाती है और हम उसको पे नहीं कर पाते या हम उसके अगेंस्ट में अपील में जाते हैं, तो हमें एओ की कोई भी रिकवरी प्रोसीडिंग से बचने के लिए 20% ऑफ द टैक्स डिमांड बनने के 30 दिन में जमा करानी पड़ेगी, तभी हमें स्टे ऑफ रिकवरी प्रोसीडिंग्स मिलेगा और उसके लिए हमें एक फॉर्म भी अलग से भरना पड़ेगा। तो करण, इसलिए अभी अपने पास बहुत समय है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको यही समझा रहा हूं कि कानूनन प्रक्रिया को कानूनन प्रक्रिया जैसे ही हमें करना पड़ेगा। हम अपनी मन मर्जी से नोटिस का जवाब हमारी मन मर्जी की डेट पे नहीं दे सकते। हमें हमारे नोटिस का जवाब फिक्स्ड समय और फिक्स्ड डेट से पहले देना पड़ेगा। सर, एक और नोटिस मिला है जिसमें इनकम टैक्स वाले कह रहे हैं जो हमने डॉक्यूमेंट भेजे थे वो ब्लड हैं और वो उन्हें पढ़ नहीं पा रहे हैं।